قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين قاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والميامين آمين رب العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان قدر، حاضران مجلس، معزز سامعین، میرے بھائی، میرے بچوں، میرے عزیز، میرے دوست، ابھی میں نے جس آئے کریمہ کو اپنا موضوع، اپنا ٹاپک قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے جو میں نے پڑھا، اور یہی آیت مین دین کی بنیاد ہے. بنیاد آپ لوگ اس سے بہتر جانتے، کہتے ہیں جڑ کو. نہیں کہتے کہ جس مکان کی بنیاد اچھی ہوگی وہ مکان بھی اچھا ہوگا، اور جس مکان کی بنیاد اچھی نہیں ہوگی وہ مکان بھی اچھا نہیں ہوگا. تو اسلام کا جو مین بنیاد ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اب اطاعت کے بارے میں بتا دوں تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں. کسی آرڈر کو فالو کرنے کا نام ہے اطاعت. جیسے کہ محفوظ بھائی نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو آ کر مجلس پڑھنی ہے، میں نے وہ حکم بجا لایا اور یہاں آ کر ان کے حکم کی تعمیل کی. یہ ہوئی ان کے حکم کی اطاعت. اسے کہتے اطاعت. باپ نے بچے سے پانی مانگا، بچے نے لا کر باپ کو پانی دے دیا، یہ ہوئی باپ کی اطاعت. ٹھیک ہے. ماں نے کہا بیٹے سر میں درد ہو رہی ہے، بچے نے سر دبا دیا، درد دور ہو گئی. یہ کس کی اطاعت ہوئی؟ ماں کی اطاعت ہوئی. ٹھیک ہے نا. ماں نے حکم دیا. اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، تو ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے حکم کیا کیا دیا ہے. اللہ نے حکم کیا کیا دیا. جیسے میں ابھی کہہ دوں آپ اطاعت کیجئے میری، اگر میں کہوں ان سے کہ آپ میری اطاعت کیجئے، تو یہ ابھی میں پوچھیں گے کس حکم پہ اطاعت کروں، کچھ بتائیے تو تب تو ہم اس پہ اطاعت کریں. بھائی آپ ہمارے آرڈر کو کیسے فالو کریں گے؟ جب تک آرڈر نہیں دیں گے آپ فالو کریں گے نہیں. اور اگر میں بغیر آرڈر دیے کہہ دوں میری فالو کریے، فالو می فالو می فالو می چلاتا رہوں، آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا. تو اب ہم کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے کہ اللہ نے کس کن چیزوں کا آرڈر دیا ہے ہمیں. اور جب تک آپ جانیں گے نہیں، عمل کریں گے نہیں. تو عمل کرنے کے لیے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، اس کا جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے. طاقوں میں قرآن مجید سجانے کے لیے نہیں آیا ہے. چوما پڑھا، پڑھ کر رکھ دیا اس لیے قرآن نہیں آیا. تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے قرآن نہیں آیا. قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرو، سمجھو. اگر عربی نہیں آ رہی ہے ہندی میں لے کر آؤ
اور اگر آپ ہندی سمجھ میں نہیں تو ہندی کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی ٹرانسلیشن ملتا ہے. آپ اس کو سمجھیے کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دے دیا کہ عمل کرو، تو جب تک ہم اس کے حکم کو سمجھ نہیں پائیں گے ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو لہذا حکم پہ عمل کرنے کے لیے ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے، ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے، ایک اچھا بندہ بننے کے لیے، ایک اچھا مومن بننے کے لیے ہمیں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پہچانیں، ہے نا؟ اللہ کے حکم کو پہچانے بھائی تبھی تو عمل کریں گے کہ اس نے کیا کیا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ نے حکم دیا کہ قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب اللہ نے کیا کیا کہا یہ بھی جاننا ضروری ہے، اور اس کے رسول نے کیا کیا حکم دیا یہ بھی جاننا ضروری ہے. دونوں چیزیں جاننا ضروری ہے، تب تو ہم دائرہ اسلام میں ہیں، ورنہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں. خارج یعنی اسلام کا جو دائرہ ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس سے ہم نکلے ہوئے ہیں. کیوں نکلے ہوئے؟ کیونکہ قرآن پر، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں. قرآن پہ، رسول پر، اللہ کے حکم پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بتائیں آپ. ہم مسلمان کہے جائیں گے؟ کوئی بھی انسان کہے گا کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے انسان مسلمان نہیں ہوگا. کب تک نہیں ہوگا؟ کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے. یہ اسلام کی میز بنیاد ہے، میز جڑ ہے. اب اس میں ہم کو آنا ہے اور کھوجنا ہے اور تلاش کرنا ہے. کیا تلاش کرنا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا حکم دیا ہے، ہمیں یہ تلاش کرنا ہے. اب دیکھیے یہ جو عزاداری ہے، آپ لوگوں نے جو فرش عزا بچھائی ہے اور یہ جو مجلس منعقد کی ہے آپ لوگوں نے، آیا اس کا حکم ہے؟ دیکھیے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے کہ یہ چیز کہاں سے جائز، تعزیہ کہاں سے جائز ہے، علم کہاں سے جائز ہے نا، ماتم کہاں سے جائز ہے، رونا کہاں سے جائز ہے. جن کی 11 مہینے 20 دن کتاب شریعت بند رہتی ہے، صرف محرم میں کھولتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں. تم نے کبھی یہ نہیں پوچھا مولانا میں یہ پیسے اس طریقے سے کما کے لایا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تم کبھی یہ پوچھنے نہیں گئے کہ میں بھائی کا حق مار کے کھا رہا ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تم نے کبھی یہ نہیں پوچھا میں شراب پی رہا ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تم نے کبھی یہ نہیں پوچھا میں جوا کھیل رہا ہوں، جائز ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جہاں محرم کا چاند نکلا، تمہاری کتاب شریعت کھل گئی اور آ گئے تم پوچھنے، اما میاں جتنا پہلے قرآن میں لکھا اتنا تو عمل کر کے دکھاؤ. ایک سلوات بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن میں پہلے جتنا لکھا ہے اتنا تو عمل کر کے دکھاؤ. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے. اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے. کتنے بڑے سچے ہو سامنے آؤ، کبھی جھوٹ نہیں بولے ہو، حرام غذا نہیں کھائی ہے. میں ثابت کرتا ہوں حرام غذا کھائی ہے، آ جائیں. میں چیلنج کر کے مجلس سے پڑھتا ہوں، میں نے اللہ کو پڑھا نہیں ہے، میں نے اللہ کو سمجھا ہے. میں نے رسول خدا کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، رسول خدا کو سمجھا ہے. اور کیسے سمجھا؟ کتاب و شریعت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا، قرآن کے ذریعے سے. میں جہاں بھی جاتا ہوں میری پوری زندگی ریسرچ، میں ایک ریسرچر ہوں.
मैंने पूरी जिंदगी रिसर्च की है और आइए तशरीफ लाइए, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, सही बुखारी हो, तिरमीज हो, सहाय सित्ता हो, ठीक है, दाऊद राज साहब की किताब हो, सारी किताबें खंगाल डाली है, हर मजहब की। कुरान को भी मैंने पढ़ा है और समझा है किसने कहा किससे क्या मुराद लिया है। इनके चचा एहतशाम के चचा मेरे हॉस्टल में जब मैं पढ़ता था तो वो जानते कि मेरे पास कई किस्म की कुरान रखी हुई। तो मैं चैलेंज के साथ पढ़ता हूँ कि किसी को भी कहीं से भी कोई चीज का एतराज हो आए मुझसे पूछे और मैं इंशाल्लाह उसको मुतमईन ना कर पाऊं तो आप बताइए। बहरहाल खैर, तो हमको करना क्या है? अल्लाह की अताअत करना है, उसके रसूल की अताअत करना है। आप जहां पर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ आपने एतराज करना शुरू कर दिया, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। अब मैं पूछता हूं कि नमाज सुबह की फर्ज 2 रकात कहाँ लिखा है कुरान में? बताइए कोई मुझे। मगरिब की 3 रकात फर्ज कुरान मजीद में कहाँ लिखा है? इशा की 4 रकात फर्ज कुरान मजीद में कहाँ लिखा है? बड़े बड़े आलिम दीन के पास जाइएगा, बड़े बड़े हाफिज के पास जाइएगा, यही जवाब मिलेगा, नहीं लिखा है। बेशक बेशक। तो फिर आप पढ़ कैसे रहेंगे? ये तो आप हमको दिखाइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हिम्मत है किसी में? आवाज सुन रहे, सुन के जवाब दे मेरा। जब नहीं लिखा है तो पढ़ कैसे रहे हो? हर चीज तो कुरान में ढूंढ रहे हो ना, अब तुम हमें ढूंढ कर बताओ, आप हमें ढूंढ कर बताइए कहां लिखा है। जवाब यही मिलेगा, कुरान में नहीं लिखा है। मैं क्या, पूरी कायनात का कोई भी आलिम दीन नहीं बता पाएगा कि कहां पे लिखा है। मैं खुद नहीं बता सकता कहां लिखा, कोई नहीं बताए, लिखा ही नहीं तो बताएगा क्या? सलाम भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या लिखा है? जो लोग कुरान पढ़ते होंगे कभी कभी आई होगी ये आयत, व अकीमुस सलात व आतुज ज़कात, है ना कुरान मजीद में? ये नमाज कायम करो और ज़कात दो, ठीक है। नमाज के वक्त के बारे में लिखा है, ठीक है, नमाज के वक्त के बारे में लिखा है, लेकिन कौन कितनी रकात है ये नहीं लिखा है। तो फिर आपने पढ़ना कैसे शुरू किया? तो जवाब ये मिलेगा कि नमाज तो अल्लाह ने हम पर फर्ज की, लेकिन पढ़ना कैसे है ये रसूल बताएंगे। रोजा अल्लाह ने हम पर फर्ज किया, रखना कैसे है ये अल्लाह का रसूल बताएगा। ज़कात अल्लाह ने हम पर वाजिब करार दी, देना कैसे है अल्लाह का रसूल बताएगा। हज अल्लाह ने हम पर वाजिब करार दिया तब जब हम साहिब इस्तिताअत को, इस्तिताअत यानी उस काबिल हो कि हज बजा लाए, और कैसे करना है ये अल्लाह का रसूल बताएगा, अल्लाह का रसूल बताएगा, है ना। हर चीजें कुरान में पूरी डिटेल से नहीं है। अगर डिटेल से होती तो फिर अल्लाह ये क्यों कहता कि रसूल की अताअत करो, रसूल की इत्तबा करो। कुरान मजीद में इसी सूरह आले इमरान में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी व युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे बंदो, अगर तुम चाहते हो तो मेरे रसूल की इत्तिबा करो। ये सूरह आले इमरान की आयत है। आजकल जीपीटी का जमाना है, फटाक से जिसको मेरी जिस बात पर किसी को यकीन ना हो जीपीटी निकालिए, अभी मेरे सामने सर्च करिए,
जीपीटी तो लोग चलाना शुरू कर दिए होंगे ना, गूगल वगैरह कुछ भी। बैठ जाइए यहीं पर, मैं जितनी चीजें पढ़ रहा हूं खुद तलाश कर लीजिए, ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, जिंदगी भर मजलिस पढ़ूंगा ही। चैलेंज के साथ पढ़ता हूं, चैलेंज के साथ, ठीक है। और जो बता दूं कि ये किताबों में लिखा है तो हर फिरके की किताब में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन मैं फिरकों की किताब में जाने की जरूरत ही नहीं है ना मुझे। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में खुद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीयों के लिए हिदायत है ना। हिदायत के माने क्या है, अब ये भी बता दीजिए। हिदायत के माने होता है रास्ता दिखाना। हिदायत के माने क्या होता है? रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना। तो जो रास्ता दिखाने के लिए आई है किताब, जब आप उसे समझेंगे ही नहीं तो सही रास्ते पे आएंगे कैसे? जब आप उसे समझेंगे ही नहीं तो रास्ते पे आएंगे कैसे? हिदायत मिलेगी कैसे? कैसे मिलेगी? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, जब डॉक्टर ने दवाई दी, एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। डॉक्टर ने आपको दवाई दी और दवाई आप घर पर लेकर आए, बच्चे ने खेल खेल में दवाई में उलट फेर कर दिया। अब आप दवाई कौन सी किस वक्त खाएंगे? फंस गया मामला ना। मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि वो मिसाल से कुछ चीजें समझ में आएगी ना, मिसाल से कुछ चीजें समझ में आएंगी। अब आप देखेंगे कि डॉक्टर क्या करता है, लिफाफे पे गोला बनाना शुरू करता है, बनाता है ना। अगर 2 गोले हैं तो हाँ, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, अल्लाह आपके मार्फत रिस्क में इजाफा अता फरमाए। 3 गोला है तो और 1 गोला है तो कैसे समझ गए? डॉक्टर ने दवाई भी दिया, खाने का तरीका भी, और ना बताया होता, ना बताया होता तब क्या होता? तो कुरान ने भी, अल्लाह ने भी यही किया है। अल्लाह ने मर्ज की दवा भी दी है, कब कैसे खाना है ये भी बताया है। लेकिन जब आप कुरान में तलाशेंगे उस निशान को तो पता चलेगा, तभी पता चल पाएगा। कुरान में जब तक तलाशेंगे नहीं पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो हमें कुरान जो आया ये समझने के लिए आया है, ठीक है ना। जहां मुहर्रम का चांद, अरे आप कभी गए, आपने कभी किसी से कहा कि झूठ के लिए क्या है, भाई भाई का हक मारेगा तो उसकी सजा क्या है, बेटा जो है बाप की अतात नहीं करेगा तो उसकी सजा क्या है, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं तो उसकी सजा क्या है, ये तो आपने नहीं पूछा, जो कि कुरान में वाजिब है पूछना आपके लिए। इसके लिए तो आप नहीं गए। एक तबलीग के लिए, इस्लाम की नेक बातों को पहुंचाने के लिए मजलिस बर्पा की तो उसके लिए प्रोपगंडे होने लगे। ई कहां से जायज है, ई कहां से जायज, अम्मा जितनी जायज चीज है पहले उतना तो करके बताओ हमें। फौरन उंगली उठने लगती है, कहां से लिखा है, क्या है, कुरान में दिखाओ। अच्छा, कुरान में जितनी चीजें लिखी आपने अमल किया? आ जाइए मैं बताऊं कुरान में क्या क्या लिखा है, बताइए मुझे आपने कितना अमल किया उस पे। कुरान में हर चीज पूरी नहीं है, खाली इशारा दिया गया है। अब मैं पढ़ रहा हूं,
जो लोग कहते हैं मुहर्रम कहाँ लिखा है कुरान में, सूरह फज्र नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, जो लोग पढ़े हैं। क्या आयत शुरू होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फज्र लियालिन अश्र, है ना? कसम है सुबह की और उसके 10 रातों की। अब बताइए, इस्लाम का कौन सा ऐसा महीना है बाबरकत कि जिसकी एक सुबह की और 10 रात की कसम खाई जाए? अब शुरू करते हैं हर महीने से। मुहर्रम को छोड़ दीजिए, सफर का महीना शुरू होता है। सफर के महीने में आप क्या क्या करते हैं? कुछ ऐसे ही है? कुछ ऐसा जिक्र है कि जिसके लिए आपको 10 रातें जागना पड़े और उसकी सुबह को? कुछ ऐसा है सफर के महीने में? बताओ तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। मैं जाहिल आदमी हूँ, मेरे इल्म में इजाफा होगा अगर आप लोग मुझे बता देंगे। अच्छा, सफर के महीने के बाद आता है रबी अव्वल। रबी अव्वल में कुछ ऐसा बता दीजिए आप मुझे, है कुछ 10 रातों और एक सुबह का जिक्र? रबी अव्वल के बाद आता है रबी सानी, इस महीने में बता दीजिए, है कुछ? कुछ अमल अंजाम देते हैं? बताइए आप लोग तो भाई, बताइए कोई अमल ऐसा होता हो। अच्छा, रबी सानी के बाद आता है जमादियुल उला, अब उसके बारे में बता दीजिए। कुछ है ऐसा जो आप जिसके लिए 10 रात और एक सुबह में कुछ कर रहे हो? आपको कुरान से मुहर्रम चाहिए ना? अब जमादियुल उला के बाद आता है जमादियुल सानी, उसमें बता दीजिए। हर महीना गिनाऊंगा और आराम से पढ़ूंगा समझा कर, ताकि समझ में आए। ठीक है, रबी सानी के बाद क्या आएगा? जमादी अव्वल, जमादी सानी, उसके बाद रजब, उसमें बता दीजिए। रजब के बाद शाबान, शाबान में बता दीजिए। उसके बाद रमजानुल मुबारक। तो इसमें तो 9 10 रातें और एक सुबह तो नहीं, तो पूरा 30 दिन का है। तो इसका मतलब ये तो रमजानुल मुबारक अल्लाह का महीना हो गया। तो आगे से रमजान के बाद ईद, ईद के बाद खाली, खाली के बाद बकरीद। बकरीद में जो हज के अरकान है वो 3 दिन के हैं से, है ना? वो तो 3 दिन का हो गया। अब बताइए, इस्लाम का कौन सा ऐसा महीना है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई कुरान में? कौन सा महीना बचा बताइए? अब समझ में आया कि मुहर्रम है या नहीं कुरान में? और अगर नहीं बताया तो बताओ, इस आयत की तफसीर बताओ, किस बारे में ये नाजिल हुई है, किस बारे में ये नाजिल? मुझे आकर कोई आलिम दीन समझा दे, मैं भी समझ जाऊं। मैं जाहिल आदमी हूं, पूछ रहा हूं भाई, मुझे मेरे इल्म में इजाफा होगा। मुझे तो डर नहीं है, कोई आलिम हम लोग पैदा हुए नहीं है, जाहिल पैदा हुए हैं, इल्म अभी सीख रहे हैं ना। तो कोई अगर गलत चीज बयान कर रहा है तो कोई इसको आकर सही बता दे भाई, है ना? अब जैसे आप ही लोग हैं, कोई बच्चा गलत काम करता है तो आप लोग उसको बता देते हो कि बेटा ये गलत काम है, ऐसा ना किया करो। जैसे मिसाल तो छोटा बच्चा है, कहीं गया, या मेरा ही बच्चा है, जैसे कहीं गया और सामने दालमोट बिस्किट आ गई, अब वो उसका बचपने का आलम है, लेकिन वो टूटे पड़ा हुआ है, नुकसान करेगा फायदा करेगा। समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? बेटा कहीं जाया जाता है तो ऐसा नहीं किया जाता है, अगर कोई उठा कर दे तो आप ले लीजिए, लेकिन ये नहीं कि एकदम टूट जा पूरा अकेले ही जो है। हाँ, ठीक है ना? तरबियत अच्छी करेंगे कि नहीं करेंगे, रोके टोकेंगे नहीं? फर्ज है ना इंसान को बुराई से रोकने पर। भाई अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कुरान मजीद में है, नेकी की हिदायत करना और बुराई से रोकना, ये कुरान मजीद में है। और सिर्फ मौलाना पर, मौलवी पर वाजिब नहीं है, हर इंसान पर वाजिब है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते उस पर यह वाजिब हो गया कि अब वो नेकी की हिदायत करे और बुराई से रोके। ठीक है ना? तो मैंने पिछले साल कुछ गुफ्तगू की थी कि अच्छा, अगर हम कुरान से तो दिखाते जा रहे हैं, बहुत कहते हैं ना कुरान में कहाँ है कुरान, अब दिखा कर जा रहा हूं, अमल करेगा कोई? तो हम दिखा कर जा रहे हैं, बता कर जा रहे हैं।
बहुत कुरान कुरान कर रहे हैं ना। अभी मैं और किताबों का हवाला भी दूंगा और बताऊंगा कि रसूल खुदा ने मुहर्रम किया या नहीं किया, मसलन कि इमाम हुसैन पे क्रिया किया या नहीं किया, करबला को बताया या नहीं बताया। जीपीटी खोलिएगा और अभी सर्च कर लीजिएगा, अभी सर्च कर लीजिएगा, जीपीटी खोलिएगा, ठीक है, कि अहले सुन्नत की कौन सी किताब में ये है। और नहीं नहीं होगा तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए मैंने इसको। हाँ, हम तो ऐसे वैसे मौलाना नहीं कि पढ़कर टहला कर चले जाए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मैंने हिंदी में अहले सुन्नत की किताब का हवाला है और ये मैंने सर्च किया है और अभी इस वाक़ये के बारे में पढ़ूंगा, आप भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं झूठ बोल कर जाऊं, अब आजकल के ज़माने में कोई तो झूठ बोलकर यहाँ से निकल नहीं सकता है। जीपीटी का फट मारिए सर्च, आ जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है कि नहीं भाई। देखिए बात एकदम क्लियर करके जाना चाहिए ना, है ना। वरना मैं जाऊं उसके बाद कोई ई पढ़ के चले गए, हम होते तो बताते। देखिए मैं पिछली बार आया था तो मैं खास करके रुका था कि किसी के मन में कुछ सवाल हो तो उससे कर ले। लेकिन क्यों आज की, क्योंकि आज मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार जीपीटी, क्योंकि अभी मुझे जाना है एक मजलिस और है वहां पर, और क्योंकि साथ में मजबूरी में बच्चा भी चला आया है तो मुझे काफी दिक्कतें हैं, तो इसलिए मुझे वापस भी जाना है। तो लेकिन मैं चैलेंज कर करके इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं जो जो पढ़ कर जा रहा हूँ, अगर कोई उस पर एतराज करे तो आप फट से जीपीटी पे सर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई देखो ये हमारी किताब में है ऐसे है, ऐसे बता दो। अच्छा ये बता दो कि इस आयत, ये जो सूरह फज्र की है, वल फज्र लियाली नश्र, ये अल्लाह ने जो 10 रात और एक सुबह की कसम खाई, ये कहाँ, इससे क्या मुराद है, कौन महीने में ये इसका होता है ना। समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है समझ में आ जाएगा। मैं कुरान देकर जा रहा हूँ भाई, कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। अब कुरान मजीद में ताबूत है या नहीं, ताजिया, अब उसमें देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताबूत फी सकीना, अल्लाह ने आसमान से ताबूत नाजिल किया। कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, ताबूत करके सर्च कर लीजिएगा, कि जिसे फरिश्ते उठाए हुए होते हैं और उसमें जनाब मूसा और हारून के तबर्रुकात हैं, और वो क्या है, उसमें तुम्हारे लिए निशानी है। क्या है, निशानी है। निशानी का मतलब समझ में आया या नहीं आया, आप लोग मुझसे बेहतर जानते, समझ गए होंगे, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए बता दूं निशानी कैसे। आप कहीं जा रहे हैं रोड पर, लॉन्ग रोड पे, आपने सामने देखा बोर्ड पर जो सामने सड़क के लगा हुआ होता है, फला एरिया, तीर का निशान, इधर मुड़ना है। आप निशानी है यानी किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना, यानी निशानी के जरिए आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह ने जो कहा इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, और हमने ताबूत नाजिल किया आसमान से, अब ये ताजीर तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। जो कहते हैं ये बिदत है, फलाना है, ठिकाना है, तो कुरान मजीद में दिखा दीजिए, उनको ताबूत दिखाइए कि कुरान मजीद में ताबूत है या नहीं है। सर्च कर लीजिए, अभी ना हो, यकीन ना हो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, मैं ऐसे ही मजलिस पढ़ता हूँ, जब जहाँ जब वैसा मजमा मिलता है चैलेंज वाला, तो हम बहुत फॉर्म में आकर पढ़ते हैं। तो आप ताबूत को सर्च करिएगा कि ये बनाना अगर बिदत होता तो अल्लाह आसमान से नाजिल करता खुद, और फरिश्ते उसको उठाए हुए घूमते, और जनाबे तालूत जो कि नबी थे उसको वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ किया करते। ये इसकी तफसीर में है, ठीक है ना। वो जिसके पास भी रहता, और ये ताजिया तो हो गया, ये परचम, रसूल खुदा के पास परचम था या नहीं था इस्लाम का, बताइए। नहीं था तो खैबर में क्या हुआ, कि आज मैं अलम उसको दूंगा जो गैर फर्रार होगा, मर्द होगा, बढ़ बढ़कर लड़ने वाला होगा।
इस्लाम की लड़ाई कई दिन तक चली थी? ये खैबर की लड़ाई 39 दिन। 40वें दिन अलम किसी को मिला था? तो अलम था तभी तो मिला मेरे भाई। अब आप कहेंगे वो अलम अलग है, ये अलम अलग है, शबी है ये उसकी, शबी नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे भाई, मस्जिद नबवी में सिर्फ एक मिंबर रसूल खुदा का था, आपने हर मस्जिदों में मिंबर क्यों बना लिया? उसी की नकल बनाई है ना, तो सभी तो आपने भी बनाई या नहीं बनाई? मस्जिदें जो बनी हैं ये किसकी नकल है? मस्जिद नबवी की। उस मस्जिद का ये अलग बात है कि मर्तबा अलग है। भाई रसूल के परचम का मर्तबा एक अलग है ना, रसूल के मिंबर का मर्तबा एक अलग है, रसूल खुदा जिस पर बैठे। लेकिन हमको वो मुयस्सर नहीं, तो हम उसकी छवि बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? छवि माने यानी उस जैसी चीज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? तुमने मिंबर बनाने पे तो फतवा नहीं लगाया, मस्जिद बनाने पर तो फतवा नहीं लगाया, ए लोग चंदा दो इतनी बनाना है, इस पे क्यों नहीं फतवा लगाते? और हमने रसूल खुदा के परचम की छवि बनाई, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है? अरे मेरे भाई, अक्ल से गौर फिक्र से काम लीजिए इस्लाम के बारे में। हैं? मजलिस बर्पा नहीं करना। देखिए, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए सर्च कीजिएगा इसको जीपीटी पे, रसूल खुदा ने ऐलान नबूवत और इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए खुद रसूल खुदा ने सबसे पहली मजलिस की थी। भाई रसूल खुदा ने जो किया वो हमको करना है या नहीं करना है? कि खाली मानना है? खाली मानना है, करना है? खाली मानेंगे तो जहन्नुमी हो जाएंगे। कहिए कि साबित करिए। मैं साबित कर रहा हूं। रसूल खुदा के साथ हज करने वाला, रसूल खुदा के साथ रोजा रखने वाला, रसूल खुदा के साथ खाना खाने वाला सहाबी हारिस इब्ने नौमान, जब उसने रसूल के कौल पर एतराज किया, यानी रसूल खुदा को मान रहा था, रसूल खुदा की नहीं मान रहा था, उस पर आजाब नाजिल हुआ। कुरान मजीद में आए थे साइला बेसाइलिन बेअजाबिन वाक़े, कि उस पर आसमान से पत्थर गिरे। क्यों? क्योंकि वो रसूल को माना, रसूल की नहीं माना, एतराज कर दिया। तो हमको भी यही करना है कि रसूल खुदा के साथ साथ, उनके मानने के साथ साथ उनकी भी मानना है। यही मेन इस्लाम है। जो रसूल खुदा ने किया वो भी हमें करना है, जो रसूल खुदा ने कहा वो भी हमें बजा लाना है। यही तो इस्लाम है कि नहीं है? ये इस्लाम, इस्लाम से बाहर है ये? अगर इस्लाम से बाहर हो तो बताइए। उनको सवाल भेजो मोहम्मद वाले। लेकिन बाज लोगों ने मजलिस ताजियत पर इतना लोगों का कान भर दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? मैं हर दौर से गुजरा हूं। पहले तो आपको हमसे दूर किया जाएगा कि इनकी 40 पारे की कुरान है। सबसे पहला ये समझ लीजिए आप। अच्छा, 40 पारे की कुरान है। आज तक दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आलिम दीन 40 पारे की कुरान लेकर आया? आप हैं, आप चले जाइए सिया बन के सिया की दुकान पर, आपके पेशानी पे नहीं लिखा है आप सिया हैं या सुन्नी हैं, ठीक है? आप जाइए, करिए वो 40 पारे वाली कुरान दे, पूरी कायनात तलाश कराइएगा, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब ये नहीं मेरे भाई हैं। जब ये पहला रीजन हमसे दूर करने का, क्योंकि हमारे पास आएंगे। देखिए, इल्जामात क्यों लगाए जाते हैं? यही ये कैसे शुरू हुआ? अबू जहल ने शुरू किया। रसूल खुदा जब दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे कि ये सूरज जो है जिसकी तुम इबादत कर रहे हो,
ये काबिले परस्तिश नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रात में काम पड़ गया तो सूरज कहाँ मिलेगा तुम्हें? ये चांद काबिले परस्तिश नहीं, उनकी अक्ल के हिसाब से समझाया। अबू जहल ने कहा कि हम आपको रसूल कब मानेंगे? जब आप पेड़ को अपने पास बुलाइए। अब रसूल खुदा ने पेड़ को हुक्म दिया, पेड़ उनके हुक्म पर आया। कहा कि अब पेड़ से कहिए जड़ यहीं रह जाए, उसका आधा हिस्सा चला जाए। रसूल खुदा ने वो भी किया, जड़ यहीं रही, उसका आधा हिस्सा चला गया। आधा हिस्सा यानी शाखें डाले वगैरह। ठीक। फिर उसके बाद कहा अच्छा इस पहाड़ से कहिए कि आपका कलमा पढ़े। पहाड़ ने यहां तक करते करते उसने कहा कि अच्छा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े कीजिए। आपने वो भी किया। अब उसने क्या कहा, आप तो जादूगर हैं। और पूरे मक्के में फैला दिया कि रसूल खुदा जादूगर है। क्यों? क्योंकि लोग जादू के डर से रसूल के पास ना जाए, वरना हमारी जो कौम के लोग हैं जिसको हम मानते हैं वो लोग क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सिस्टम शुरू से चला आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पे जितने इल्जामात लगे हैं आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। और क्यों नहीं? क्योंकि सब झूठे और फ्रॉड हैं, सब झूठे फ्रॉड हैं। ठीक है ना? रहने दीजिए, जहां आप लोग खाइए हवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सलात आप लोग अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए, कसम खुदा की मेरी मेहनत स्वार्थ है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? बस इस्लाम समझ में आ जाए, चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना? रसूल खुदा तो पत्थर खा खा के इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे, हम तो गर्मी में बैठे फिर भी गनीमत है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है? तो जिससे हमको हिदायत मिलनी है, कुरान रास्ता जो दिखाएगा, उससे हम दूर हैं तो मेरे भाई हमें हिदायत कैसे, है ना? हमें हिदायत कैसे मिलेगी? मैं अपनी मंजिल पर आ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी वापस भी जाना है। अब ये मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया आपकी किताबों में मौजूद है, सर्च करिएगा। रसूल खुदा ने करबला की मिट्टी जनाबे उम्मे सलमा को दी, किस किताब में है? ये तो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली है, आप लोग भी कर लीजिएगा, मुतमईन हो जाइएगा, या हमसे कहिएगा हम इनको भेज देंगे आपको ये चीज निकाल लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए कैसे ये वाकया रूनुमा हुआ, यानी कैसे हुआ ये वाकया। एक बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हबीब जनाबे उम्मे सलमा के पास, अपनी ज़ौजा के पास आए और कहा कि मैं अपने हुजरे में जा रहा हूं। ठीक है? कोई भी आए तो उसे हुजरे में दाखिल ना होने दीजिएगा क्योंकि मैं आराम करने जा रहा हूँ, काफी थका हूं। जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि ठीक। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और अपनी नानी को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा मेरे नाना जान कहाँ है? कहा मेरे नाना जान कहाँ है? जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि वो अपने हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन जाना चाहते थे, जनाब उम्मे सलमा ने रोक दिया कि बेटा वो आराम पर। इमाम हुसैन ये कहकर जाने लगे क्या मेरे नाना ने मुझे भी मना किया है? जैसे ही ये जोश में इमाम हुसैन बोले, रसूल खुदा फौरन अपने हुजरे से बाहर निकले और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और कहा कि